Hi Harshit, and thanks a lot for coming and welcome on Europedia. Yeah, yes, sir. Thank you, sir. And I must congratulate you for your selection in the post of assistant manager. After 1 year, you will get that post Oh, in a sir. very prestigious Maharatna company of India, that is Coal India Limited, in material management domain. Yes, sir. It is all because of you, sir. Because of Okay. your lectures. Okay, thanks a lot, Harshit. Harshit, this exam now I can see that this is the second time I think recently. Earlier also 2021 may also there was exam, 2022 may there was exam. So No, looks sir. like 2019 and then 2022. 17, 19, and 2022. okay, 17, 19, and 2022. Yes, sir. Okay, in between there was no exam for this, right? No exam, sir. Yeah. Okay, so can we expect no this kind of exams in future also, Harshit? Yes, sir. In 2023, they are, matlab, we talked with the HRs and senior HRs. They are saying that we are going to release some more vacancies to Hmm. just complete the 10 lakh quotas of, PM Modi's. So Hmm. there is a So I chance think of vacancies. okay. So what is that 10 lakh quota you are talking about? Sir, Pradhan Mantri is going to give the 10 lakh Jobs, huh? employment to the youth. Acha, acha. It is in the process of that. And It is in. also, I think there is an expansion also going on in Coal India. A lot of Yes, sir. production is There is to be expansion. increased. There is a target. Okay. They are targeting to extract 1 billion ton coal Ah, before 2025. So they need yes. so many manpower. So they are Hmm. going to recruit again and again. Yes, that is wonderful. And this is Yes, one sir. of the very good opportunity for those technocrats who have, management degree with them. So Yes, I sir. interact with you in that direction, Harshit. First, I start with your background. Please tell us about you briefly. From which part of India you are and आपने graduation कहाँ से किया, किस stream में किया, management कब किया आपने और कहाँ से किया, and इसके बाद आप क्या कर रहे थे अभी before this you opportunity you got. Sir, basically, I am from Central India, Madhya Pradesh, Okay, Katni district, okay, and I have done my 11th and 12th in from Kota. I was okay, preparing for the IIT JEE, okay, and but unfortunately I was not selected in IT, so I have to okay. do my engineering in Oriental Institute, Bhopal, Okay, and I have done my B in mechanical engineering. And just okay, after that, I have qualified as a CET exam. So I okay, was in IIM Indore. okay, Yeah, so I have done my MBA in HR. okay, And after wonderful. that, I got a placement in a bank, Bandhan Bank. I Okay, used to work there for 8 months, but hmm. after lockdown, any just starting phase of lockdown, I quit my job. Okay, So after quitting my job, I have to wait 1 year, 5 months, and 29 days. After hmm. that, I qualified this exam. Before this, I have appeared in three additional exams: ATC, Airport AIATC, Airport Authority Quality of India, and DFCCIL, and Delhi Metro Mechanical Engineer. But I haven't qualified any of them. And this time I appeared in CIL and I got qualified in this. Hmm. Okay, now Harshit, if I ask you like ये जो अभी आपका एग्जाम हुआ था इसका कैसा पैटर्न कैसा था? What was the pattern like for this exam? जो सब मटेरियल पैटर्न तो मैनेजमेंट का हुआ था. सिंपल था। पहले तो वही 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, फिर 25 क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग, एंड देन 25 क्वेश्चन अपने जीएस के, और Okay, 100 क्वेश्चन जो इसके थे अपने पूरे टेक्निकल डोमेन के। okay, और टेक्निकल डोमेन में इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं रहता, सारी चीजें मतलब एमटेक एमबीए से रिलेटेड ही रहती हैं। okay. सेफ्टी हो गया, टीक्यूएम हो गया, और अपना सप्लाई चेन, इक्यूएम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कंप्यूटर Hmm. से कुछ क्वेश्चंस थे, Hmm. यही सारी चीजें। और इस बार मैंने सुना है जीईएम से भी क्वेश्चन थे जो गवर्नमेंट वाला एक पोर्टल है. हाँ सर, जीएम से थे, ई गवर्नेंस वाला। ई गवर्नेंस वाला डोमेन थे. ओके, सो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चंस पूछा था. जी सर। और ये गवर्नमेंट ई टाइमिंग्स कितना मार्केट, हाँ जी. गवर्नमेंट ई कितना, मार्केट था ना सर, जीईएम, हाँ गवर्नमेंट ई। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग वाला जो उनका है. जी, सो ई और ये गवर्नेंस टूल। कितना टाइम मिलता है इस पेपर के लिए हर्षित? सर 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने रहते हैं। वैसे तो स्पीड टेस्ट है लार्जली. यस सर, स्पीड टेस्ट है सर। टफ टफ तो कुछ भी नहीं था, इंग्लिश इजी रहती है, जीएस इजी रहती है। ओके. मैथ और जो मतलब क्वांट और जो रीजनिंग थी, बस वो लेंदी थी। लेंदी मतलब कैलकुलेशन, आपको रूट 2 की वैल्यू निकालनी है और मल्टीप्लाई ऐसे करने हैं, बाकी था वो भी इजी। और फिर बाकी जो डोमेन था वो तो सारा एज इट इज वही थे जो लास्ट ईयर के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे पेपर पे। ओके. जो आपके मॉक टेस्ट थे उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे। जो आपने मॉड्यूल प्रोवाइड किया उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें। बेसिकली अच्छा. मॉड्यूल और मॉक टेस्ट वो बहुत फुल हेल्पफुल थे। ओके, तो हर्षित जी ये इसका जो अगर जैसे अभी आप बता रहे हैं कि एग्जाम फिर से आ सकता है, तो स्टूडेंट्स को कैसे मतलब हाउ दे कैन प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड हाउ दे व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दे कैन मेक फॉर दिस. सर, मैं तो मतलब
मतलब जो टेक्निकल डोमेन था मैंने उसमें ज्यादा स्कोर किया मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल डोमेन का जो सिलेबस है वो भी लिमिटेड ही है, ज्यादा बड़ा वास्ट नहीं है। ओके अगर अपन उस पे फोकस करेंगे तो उसमें आराम से 80 to 85 मार्क्स अपन स्कोर कर सकते हैं। और ओके। इसके बाद जो नॉन टेक का डोमेन है सर, उसमें जीएस जीएस ऐसी वास्ट है कि कुछ भी आता है। तो उस हम्म। 25 क्वेश्चन में जीएस में तो लिटरली मुझे भी 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब नहीं आ रहे थे। और ओके। कुछ तो बहुत पुराने पुराने उससे भी पूछता है, मतलब बजट से और इधर से। तो आदमी हम्म। इतनी सारी जीएस इतने जल्दी नहीं पढ़ सकता, पर मैथ क्वांट हो गई और रीजनिंग हो गई, इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल कर सकते हो। हम्म। इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हो, पर जो हम्म। टेक्निकल है आपको स्कोर वही दिलाएगा। गुड। अच्छा हर्षित, मेरे को ये बताइए, जैसे अभी ये कोल इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी निकला है ग्रेजुएट प्लस मैनेजमेंट वालों के लिए, तो मैनेजमेंट और भी वाला पब्लिक सेक्टर में निकलता है क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी? सर, सेल में भी अभी निकली हुई थी, लास्ट डेट थी 18 उसकी, हाँ सेल में। हाँ और हाँ। बीपीसीएल में थी सर, उसकी भी मैंने अप्लाई करी थी, मैकेनिकल प्लस एमबीए था उसमें भी। अच्छा। बीपीसीएल में भी एसी के लिए था, मटेरियल मैनेजर के लिए था। और मतलब ओएनजीसी अपॉर्चुनिटीज में आती था। रहती हैं। जी सर, अपॉर्चुनिटीज आती, बीपीसीएल ओएनजीसी और ये इनमें सेल भी, चार तो मैंने ही दिए हैं। गुड। जी अच्छा हर्षित, ये बताओ, जैसे मैनेजमेंट वाले लोग हैं, जैसे आप भी बहुत अच्छे कॉलेज से हैं आप, तो प्राइवेट सेक्टर भी तो बहुत अच्छी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, फिर लोग सर, पब्लिक सेक्टर मैं में क्यों आएंगे? प्राइवेट सेक्टर में सर जॉब कर ही रहा था ना मैं सर, सिक्योरिटी नहीं होती उस पे। बैंक पे था मैं, एचआर था। अच्छी हम्म। अपॉर्चुनिटी थी, ग्रोथ भी अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी थी, पर सिक्योरिटी नहीं होती। जब हम्म। उनको लगता है कि वर्कफोर्स ज्यादा हो रहा है तो हायर फायर कर देते हैं। अभी आपने देख ही रहा तो कितने सारे ले ऑफ चल रहे हैं। कोविड डेटा के टाइम पे तो है, और का अभी भी चल रहा है, रिसेशन आ गया तब भी ले ऑफ होता है। चल ही कोविड के रहा है। टाइम पे भी बहुत ज्यादा हो गया था। यू आर राइट। मैं तो कोविड के टाइम पे ही आया था ना, मतलब हुआ था हम्म। टर्मिनेट तो। सही है। जी अच्छा मेरे को ये बताइए हर्षित, जैसे जो स्टूडेंट अभी बीटेक कर रहे हैं और जिन्होंने एमबीए भी किया है, क्या वो इस चीज के लिए प्लान कर सकते हैं कि साहब हम इस एग्जाम को निकालेंगे और ऐसे एग्जाम यस सर, क्लियर ये कर एग्जाम जाएंगे? को सर इसमें क्या है कि सब ये ऐसा एग्जाम है, इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर अच्छा। लिटरली होता है जैसे कि हम लोग थे तो बहुत कम कंपटीशन था, बहुत कम हम्म। नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और वैकेंसीज हाँ मतलब मॉडरेट रहती हैं। हाँ तो जी। चांसेस रहते हैं इसमें कि, और ये बेसिकली जनरल वालों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है सिलेक्ट होने के लिए, लोअर कैटेगरी वालों को। सही तो बात है। मैं तो बोल रहा जो भी एमबीए कर चुके हैं, मतलब जो बीटेक कर चुके हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से और एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं, तो हम्म। इसमें ट्राई करना चाहिए उनको। उनको बेनिफिट हो जाएगा। हम्म, तो इसमें हर्षित, जैसे अभी ये आप जॉब जो आपको लगा है मटेरियल मैनेजमेंट का मिला है आपको, जी सर। इसका आपने पता किया होगा क्या प्रोफाइल है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज दिस? सर मटेरियल मैनेजर है, और इसको जैसे कि लेमन लैंग्वेज में हम ट्रेड मैनेजर बोल सकते हैं। अच्छा। तो जितने भी मतलब इस एक प्लांट्स होते हैं, मतलब प्लांट मतलब जो माइंस होती है और उनका जो हम्म। ऑपरेशनल हेड ऑफिस होता है, हम्म। ऑपरेशनल हेड ऑफिस हम्म। नहीं। तो हम्म। ये दोनों को मिला के एक प्लांट बोला जाता है। तो उस प्लांट हम्म। के अंदर जितना भी मतलब ट्रांजैक्शन होगा मनी का या फिर कोई हम्म। भी सामान का, तो वो एक मटेरियल मैनेजर के हुक थ्रू के ही गुजरता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो स्टेशनरी प्रोडक्ट हो। एक पेंसिल भी लेना है तो हमारे थ्रू ही जाएगी वो। तो ये काम है एक मटेरियल मैनेजर का वहाँ पे। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसी होती हैं इसके अंदर? सर वो ग्रोथ तो अब जब काम करना शुरू करेंगे, जब वहां पे खुद तब पहुंचेंगे, पता तब लगेगा। रियलिटी समझ में आएगी। अभी तो हम्म। जैसे वहां के एचआर से बाकी स्टाफ से बात करी तो सबने बोला कि ग्रोथ तो है, काफी है। पर अब हम्म। जब खुद उतरेंगे उस फील्ड में तब पता चलेगा रियलिटी क्या है। मतलब अभी आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि अंदर कैसे होने वाला है? हाँ सर, अभी मतलब हम लोग को इंडक्शन भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ज्वाइनिंग हुई है। ज्वाइनिंग भी अच्छा। नहीं बोल सकते, अभी सिर्फ मेडिकल क्लियर करके आए हैं। और हम्म। मेडिकल फिट का मेल आया हुआ है, अभी ऑफर लेटर भी हाथ में नहीं आया है और ज्वाइनिंग भी नहीं आई है, तो उसके जस्ट वेट ही कर रहे हैं। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह भी होता है इनका? हाँ, ओरिएंटेशन होता है, रांची में है 15 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम पूरा। हम्म। इंडक्शन, ओरिएंटेशन और सारी चीजें। चलिए बहुत अच्छा है, आपने हर्षित सारा डिटेल में बहुत चीजें बताई हैं। अब लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई मैसेज आप देना चाहें स्टूडेंट्स को जो इन सर एग्जाम्स के लिए बस एस्पायर वर्क कर रहे हार्ड हैं। करते रहे। मैं जैसे 4 एग्जाम में फेल होने के बाद ही मैंने चौथा, सॉरी 3 एग्जाम फेल होने के बाद चौथा निकाला था। हम्म। ऐसे लोग 3 एग्जाम फेल होने के बाद बहुत मतलब डाउन हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बट मैं हम्म। ऐसा बोलता हूँ कि जब आप 3 एग्जाम निकाल चुके हैं तो इसके बाद ऐसा है कि आप बहुत आगे आ चुके हैं। हम्म। तो कुछ एक या दो स्टेप और है जिसके कारण आप रुक रहे हैं, वो 2 स्टेप और करेंगे तो आप पार हो जाएंगे। तो वंडरफुल मेहनत करते वंडरफुल। रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए इजी। गिव तो अप चले किया तो, लगे रहना चाहिए, राइट? हाँ सर। चलो बहुत और अच्छा बहुत मैसेज। सारी अपॉर्चुनिटीज आती है सेम फील्ड में, मटेरियल में ही मैं बता रहा हूँ, आईओसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी और ये सीआईएल, ये चार थी। सेल भी अभी अभी उसका रिक्रूटमेंट बंद हुआ है, 18 तारीख को था शायद उसका लास्ट टाइम फॉर्म भरने के लिए। तो मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी इसमें और आती आती भी रहती है सर, हाँ। है। चलो दैट इज वंडरफुल हर्षित। सो वी हैव कम यस। टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन, जो आपने बताया, इन्फॉर्मेशन दिया, एंड आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट इसको सुनेगा नेक्स्ट टाइम के लिए जाना चाहता है इसके एग्जाम के लिए, उसको बहुत बेनिफिट होगा। तो जी सर। हर्षित, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर नेक्स्ट थैंक यू करियर सर। है, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक्स सर।